Yeah, hi Satadru. Hello, Uh, Suman. Today we'll be talking to Satadru Shovan Banduri, and he'll be saying everything about himself. Let's hear from him. So, Satadru, how you introduce yourself as a painter, as a performance artist, as a multidisciplinary artist? How exactly you introduce yourself? I thought that my practice is multidisciplinary practice because my practice is not dependent on one medium. Okay. It's a multiple medium. Okay. So I transforming to one medium to another medium. It's kind of together to make a one forms. Okay. So I don't acclaimed I'm visual artist. I acclaimed multidisciplinary artist because I do video, animation, sound, performance art. So all together. Okay. So I don't acclaimed like a mono medium. I'm acting, so my medium is multidisciplinary. Start my journey from Shantiniketan. Okay. I In the think year? In the 1993, Okay. and that time I just give my 12th school, and I have a fight with my father. And you used to stay in Kolkata? Yeah, I Or- used to stay in Howrah, Okay. and my father is a businessman. Okay. So he don't want to go to an art world. So I just fight with Like my the same father. old story everywhere. Yeah, father have to fight, Okay. and he says that now you have to choose commerce, and you can study BComs and just join my business. Okay. So I have a big request to my father because in childhood I think 2.5 year I got the prize, international prize from ISKCON. Okay. So that is my biggest. That's a journey start. You can When you say. were in school, basically. No, that's Cool. kindergarten. That Wow. 2.5 year. Wow. Wow. So my father also very surprised, and he go to receive in Kolkata that prestigious award, and everybody like a foreigner acclaimed that your son is genius. So my father kind of convinced. All the time we if the encouragement come from foreigner, we already very much convinced. That Right. when my mom talked to my father that he's doing very well, but my father is He will not listen so to much him. so much He will not convinced. listen to her, huh? Yeah. So that's my journey began. Okay. And slowly I grown up. Like in class 8, I'm going just 0 in math because all the math books full of drawing. Okay. So that's a kind of melancholy for me. And father stopped to any art school or any kind of artwork. So I just stopped to do that. I stopped my art schooling. Okay. I used to go to take tuitions from Amolnath Chakladar. He's the Indian school of in Abanindranath, Gaganendranath घराना का आर्टिस्ट है. Okay. तो उनके पास मैंने सीखा, तालीम लिया. तो मेरा शुरू से ही एकदम छोटा उम्र से मतलब क्लास 4-5 में I try to do wash, gouache and miniature. Wow. So in the beginning, in my childhood, I used to do all kind of things, and then the 12th I just begged my father, give me one chance to go to art college. So my father said no, and finally I convinced, and I go to inquiry where is the art college, and I have to go. So in West Bengal have 5 art colleges. So I fill all forms, all where I go to fill the forms and get to know what is the criteria. Right. I meet one guy in government art college. He says that, oh, your work is so nice. You must go to Shantiniketan because wash gouache only encouraged to Shantiniketan. Then I like catch a train 5 hours journey from my house. Okay. I reach there. Then I fill the forms and I give the exam, and that I think is a 2,000 boys give the exam, and they're going to choose only 20 boys. Yeah, Out of 2,000. Wow. 2,000. And that time males and females interviews another day, and But separately done. Yeah, separately done, and 20 males and 18 girls. Okay. So I'm so worried, and my father is very happy. And the funny thing happened. We shared a dormitory. One guy was saying to my father, your son is coming to first time, so you have to come many times, then your son going to take admission. So my father is very happy. Oh, come on. So then I can take my son and let's my business. And the night, I think 3:30, our result is out, and the very loud voice saying that I'm a rank in a merit list in a 5th. So Okay. I'm very proud, and I don't know. They announced the names Yeah, basically. names. Wow.
So my father don't believe. Say just another people say. Yeah, then father is so proud. Father वो वीट ठेल के अंदर गया, देखने की कोशिश किया, तभी उसको रियलाइज़ हुआ. Then we go to our guest house and whole night we talk. I did not sleep, and in the morning Papa invite me to breakfast, very generating breakfast. I am thinking that क्या हुआ, कोई बोली के पहले मुर्गा को खिलाया जा रहा है क्या. तो I was so दुख भी हो रहा था, मतलब क्या होगा, मुझे अभी पढ़ने मिलेगा नहीं मिलेगा. तो my father after breakfast we go to the institute and he give the admission. So surprised that पापा 1 मिनट में कैसे राजी हो गया, जो पापा पूरा रात जिद कर रहा था कि बेटा बहुत हो गया अब चलो. तो पापा पहले हमारा एडमिशन हुआ, देन वी मीट टू सौनत कौर वाज द प्रिंसिपल. तो सौनत कौर शांतिनिकेतन. ओके. तो माई फादर वाज डोंट नो एनीथिंग. पापा ने पूछा मैं बेटा को छोड़ के जा रहा हूँ, क्या होगा, कुछ पता नहीं है, मतलब उनका कुछ आर्ट के बारे में नॉलेज नहीं था, लेकिन ही वॉज अ फोटोग्राफर, ही इज़ अ जीनियस फोटोग्राफर. एंड सौनत कौर ने एक बात बोला मेरे पापा को, आप बेटा को छोड़ जा रहे हो, ये आखिरकार होगा तो हीरो नहीं तो ज़ीरो, इसके बीच में कोई रास्ता नहीं है शांतिनिकेतन में. तो दैट टाइम मुझे समझ ही नहीं आता सौनत कौर कितना बड़ा बातें बोल दिया. आज आके हमको पता चल रहा है ये इसका मतलब क्या है इतने दिन अंत में आने के बाद. तो मेरा जर्नी शुरू हो गया, शांतिनिकेतन तो ख़त्म हो गया, BFA किया, MFA किया, एंड आई मीन फर्स्ट क्लास फर्स्ट इन MFA. That was BVA or BFA. Okay. And MFA and फर्स्ट क्लास फर्स्ट. देन मैंने पापा को जीत किया कि मुझे ना PhD करना है. पापा बोला इतने पढ़ाई किया, इतना सारा खर्चा किया, आई कांट एफोर्ड. सीधा भाई मैंने पूरा लिख के रखा है पर्चे पे, आप लौटाओ मेरे पैसे, जॉब करो या बिजनेस में बैठो. तो बहुत फाइट हुआ. मैंने डिसाइड किया कि यार मुझे भागना है घर से, नहीं तो मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, बिजनेस में बैठूँगा, पढ़ाई भी नहीं करने देगा. देन आई टॉक टू फ्यू फ्रेंड्स एंड आई केम टू दिल्ली. मुझे कुछ भी पता नहीं था, काफ़ी बार घूमने के लिए आया था, लेकिन कहाँ पे रहना है, क्या रहना है. Chandana Hor, Somnath Hor's daughter, just helped me. Okay. You go to Mandi House and you get the ललित कला का गेस्ट हाउस आपको मिल जाएगा. एंड ललित कला का गेस्ट हाउस में आप रह सकते हो. तो उनके भरोसे में मैंने दिल्ली आ गया, तो मैंने जॉब ढूंढने की कोशिश किया. And she helped you? Yes, she helped me in the previous, and यहाँ पे आया, मुझे जॉब मिला था. Okay. Then And which year it was? 2000 I passed out. 2000 and 2000 I came. Okay. In month of I think July, August. Okay. And start my career with animation company. Okay. And then I moved to college in Institute of Fine Arts, Modi Nagar. Okay. I teach 2 years over there. And then I thought that too much job, I could not do my artwork. Then I quit again and go to the small money school job, because I thought that school job करके मुझे time मिल जाएगा, then I can survive and I can do painting. Right. उस टाइम में I produce a body of work जो जाननी था. मैं जब मेरे यहाँ पे मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब किया, उसका जो फार्मूला था, एक छोटा स्मॉल टाउन से आया लड़का का, कितना मन में क्या क्या रेखा दिया था, मतलब कैसे इफेक्ट आया था मेरे मन में, उसके ऊपर मैंने काफ़ी सारे पेंटिंग किया. You did a series of work? Yeah, series of work. Then I have to do solo show. You named it anything? You titled that series anything? Like Yes, you have... I could not remember and recall. Okay. I think technological life. Okay. Because जो टेक्नोलॉजिकल वोकाबुलरी होता है, आप मल्टीनेशनल कंपनी में जाओ, आपको हर टाइम हंसते रहना है, आपको पूरा एक कैमरा से आपको ऑब्जर्व होते रहेगा. तो एक जो इंसान सारे टाइम You felt very fake. You felt fakeness. Yes. Right? Yeah. एक बंदा को सारे टाइम एक मॉनिटर के सामने एक फेक स्माइल देना पड़ेगा, और आपके मूड अपसेट होगा तो आपकी सैलरी घटेगा. तो ये चीज़ मुझे बहुत कॉन्ट्रास्ट लगा. मैं एक छोटे शहर से आया, वहाँ पे हंसने रोने का कोई प्रबंध ही नहीं था, और इधर आके मुझे बहुत घबराहट होने लगा. और आपको ये मतलब 2 वीक्स में एक ड्रेस रिपीट नहीं होना है, 3 सेट ऑफ शू रखना है. तो ये सारे वोकाबुलरी मुझे लग रहा था कि मैं एक जेल में आ गया हूँ, मतलब एक केज के अंदर हूँ. एंड एवरीथिंग इज इंस्ट्रक्टेड बाय समवन और मॉनिटर्ड मी. तो ये चीज़ मुझे जो मेरे मन में जो इफेक्ट पैदा किया था, उसके लिए मैंने सब पेंटिंग वगैरह किया. देन आई एग्जिबिट इन धूमीमल, एंड आफ्टर दैट लेटेस्ट स्टेज आई डिड मॉन्टेज आर्ट alias was it. And
जो थोड़ा थोड़ा करके चेंज होते रहा। जो मेरा कंप्यूटर में अभी पहले पेंटिंग कर रहा था इंडियन स्टाइल में और शांति निकेतन में मिक्स मीडिया में, और उसके बाद मेरे ज़िंदगी में कंप्यूटर आ गया। तो मुझे लगने लगा कि अरे यार हम स्पैचुला जो यूज़ करते हैं वो भी तो टेक्नोलॉजी है, पेंसिल भी टेक्नोलॉजी है, तो हम क्यों ना इसको भी एक्सेप्ट कर लें, इसको भी हथियार बना के कुछ काम कर सकते हैं। वो क्या देता, कंप्यूटर क्या देता है आपको, एक रेगुलर फार्मूला देता है, लेकिन आप रेगुलर फार्मूला को जान के उसको तोड़ने की कोशिश करके अपने तरीके से उसको हैंडल करो तो कुछ आर्ट निकल सकता है। मैं सोचा कि उसको अपने तरीके से यूजिंग द डिजिटल मीडिया फॉर योर ओन बेनिफिट, राइट। मैं उसके ऊपर काफ़ी सारे रिसर्च किया, काफ़ी सारे लोगों का काम देखा, उससे मैं बहुत सारा पढ़ाई कर रहा था, बहुत सारे और एक मुझे अच्छा काम हुआ था जब डिसर्टेशन में कर रहा था। मेरा डिसर्टेशन था आफ्टर फ्रीडम कैसे कैसे लोगों के काम में मेल इमेजेस आया, मेल आर्टिस्ट के काम में मेल इमेजेस आया, राइट। भूपेन, जितिस कला, सुरेंद्र नारायण एंड इस सब की स्टूडियो मैंने घूमा। भूपेन के पास आई थिंक मैं बड़ौदा में था, मुंबई में गया था, अतुल दोरिया के स्टूडियो में गया, जितिस कला के स्टूडियो में, सबका काम मैंने देखा। सबके काम में जो डिजिटल इन्फ्लुएंस आ रहा था मुझे बहुत अच्छा लगा। और वो लोग ये नहीं है कि आप एक डिजिटल प्रिंट कर लो, लेकिन उसको समझ के उसके बाद उसके अपना तरीका बना के उसके अपने मोल्डिंग दे रहा था। ये मुझे समझ आ गया था, एक अपना लैंग्वेज दे रहे थे। यस, लैंग्वेज बना रहा था। तो मैं भी कोशिश करने लगा कि हम भी कैसे कर सकते हैं। उस टाइम में आई विजिट मेनी एग्जीबिशन। यहाँ पे आई थिंक इज अ फेमस एग्जीबिशन जेरोक्स हुआ था आई थिंक 2002 या 2004, I could not recall. And that time Xerox will be give the more during impact. the time of art boom, it happened during that time. Yes, I remember. Xerox में काफ़ी कुछ डिजिटल मीडिया के बारे में दिखाया गया। वहाँ पे सेवा चाची का काम था। lot of good artists working on digital media and कैसे vocabulary को चेंज कर रहा था वो सब कुछ देखने के लिए मेरा। Then मेरे काम भी चेंज होते गया, कंप्यूटर आ गया मेरे ज़िंदगी में। तो मैं दोनों चीज़ मेरे हाथ में था। एक तो मेरा जो स्टडी शांति निकेतन में था, मिनिएचर था, वेरी ट्रेडिशनल मीडिया, एक तरीके से एकदम कॉन्टेम्पररी जो अभी हो रहा है, सब लोग कर रहे हैं, उसको हम दोनों चीज़ को मैंने मिक्स करने लगा। तो मेरा एक नया स्टाइल निकल गया था। एंड 2007 आई डिड अ सोलो शो थ्रू मोन्टाज एंड द वर्क वाज in a day sold out. Okay. Yeah, Sadhadru, what about your solo show? Please. Yeah, this is the second solo show done by Montage Art. I think after one day I'm flying 2007. I think 7 January I have my flight. Right. My show was open in 6 January. Okay. So within 2 days I was in my show, and I got the news. I think end of the show, I think all the work is sold. I am so happy. Wow. And so glad. So that was your solo? Solo. Got it. 16 work was sold. So you were rich that time. Yeah, and then I fly to America. Okay. एक अलग से जगत मेरे लिए ज़िंदगी के लिए शुरू हो गया था। Okay. बिकॉज इट्स वेरी न्यू वर्ल्ड। वहाँ पे इतने सारे वोकाबुलरी था। वहाँ पे जो हम लोग का यहाँ पे जो स्टडी सिस्टम होता है और वहाँ का जो स्टडी सिस्टम होता है उसमें हेल एंड हेवन डिफरेंस। I would love to know what exactly you faced there and what kind of difference is there. Yes. Please. मेरे ज़िंदगी के जितने सारे पढ़ाई था, मेरे स्कूल का, मेरे कॉलेज का जो शांति निकेतन में पढ़ाई था, उसका पढ़ाई का और वहाँ पे जाके जो पढ़ाई है ना, यहाँ की जो पढ़ाई था ना बहुत ज़्यादा स्पून फीडिंग था। योर टीचर गिव यू अ सेट ऑफ डाटा, अ सेट ऑफ नोट्स, यू हैव टू जस्ट वोमेट इन योर एग्जाम। बट वहाँ पे जो था they give the plenty of example, glossary and library books. You have to read and you have to understand. You have to read and understand. Wow. Understand, and after that you have to present a paper. So it's a big job. You have to understand. And you have to present a paper. It's not only in PhD time. It's not PhD. No. It's a class. It's normal class. You have to. They finish one book in a one day. Right. Just and they give the many example, many link. You can go and very video. You have to see. And after the Friday, everybody's. So you have to write your own understanding of those things. Yes, and you have to give in a presentation your slide and how you understand the whole topics. So it could be huge for me. Right. And then I used to work like 24 hours. I don't sleep. There was a sleep. The pills was available in America. If you take the sleep pills, you don't have, you wake.
So I used to take the pills. अच्छा, and- to keep awake, you used to take the pills. yeah. Huh? So Oh. it's funny because my university was a hill, like the mountain top, and Uh-huh. we used to live in a valley. So no one live in a mountain, only the university. And So the where was seven it? hills, Where was it? It was in Santa Cruz. Santa Cruz. Okay. And it's a beautiful university, and morning time we come out from the library, we can see the Moon Bay, Half Uh-huh. Bay, and we Okay. can see the Google building, Okay. Yahoo building, and sea. It's a beautiful scenario. Okay. Anyway, so that's going on in my over there. There's a many subject I learned from there. Gender studies. Before India, I never heard that gender study कि एक subject होता है, इसमें भी कुछ पढ़ाई के लिए But it कुछ was होता है. there. Is there. Wow. So it was totally eye-opening for me Uh-huh. to know that what is exactly gender study. Right. एंड उसके साथ साथ मुझे डिजिटल बहुत कुछ सीखने के लिए मिला. CCTV कैमरा, एंड वी यूज टू ट्रैवल. द 7 यूनिवर्सिटी टुगेदर इज कैलिफोर्निया. सो यू यूज टू ट्रैवल all the university. We go to Berkeley, San Francisco, Okay. we go to Santa Barbara. Mhm. So we have to travel and we have to learn all the things. Okay. We go to dancer studio Mhm. and we have to know that sensor dance. So it could be they put the sensor on your body, Okay. and they catch the each part of your body, how the movement. So it will be So brought the movement was okay. each part. Wow. Only we see the face expression or but all the part of your body Okay. has to be sensitive. मतलब कि एक रिदम जब होता है आपकी हाँ. सब पे सेंसेशन होता है. Right. सब कुछ को कैच करने की जरूरत है. और वो उसको दिखाते थे उस Yes, चीज को. वो सेंसर लगाते हैं. Wow. So इतना कुछ सीखने के लिए मिला, इतना कुछ चीज़ों को एक करके वो And लोग that काम was कर रहे like I would like to understand. So आपकी बॉडी में लगाने के बाद it used to be like एक a छोटा kind छोटा of a sensor, it sensor like camera. so it was there on a monitor. It used to be there Yes, on a monitor. जो सेंसर लगा देंगे वो डांस करे. हाँ. लेकिन वो जो डांस करने वो जो सेंसर उसको पकड़ेगा ठीक है. कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है. Right. और हर पार्ट की एक माइन्यूट पिक्चर लेंगे, जैसे माइक्रोस्कोप. And it will be used as a artwork. यस, उसको फिर उसको वो 5 मिनट का उसके एग्जाम की उसका पूरा जो बनेगा हाँ. 100 मिनट्स. 5 Wow. मिनट्स to 100 मिनट्स. Got it. इतना उसकी इमेजेस आता है. Beautiful. तो Beautiful. Experimental way. यस, एक्सपेरिमेंट. Totally experimental. तो एक था साइबर जैमिंग. साइबर जैमिंग में हम लोग क्या करते थे, एक जगह पे जाके साइबर जैमिंग इंस्टॉल करके बैठ हाँ. जाते थे. हम सोचते थे यहाँ पे लव फक ये वर्ड कितने लोगों ने चैट में यूज़ किया, तो Okay. वो हमको डाटा दे देता इतने लोगों ने यूज़ करा था. हाँ. और एबंडन बहुत ज़्यादा यूज़ होता है अमेरिका में. Right. हुकअप, ठीक है. Okay. और काफ़ी सारे लैंग्वेज है चीज़ हाँ. बहुत ज़्यादा यूज़ होते थे. हम लोग उसी को लिख देते थे और वो हमें डाटा दे देता था इतने लोगों ने यूज़ करा था. Okay. तो उसमें से हम परसेंटेज करते हैं. हमारा काम क्या होता है इसमें से आइडेंटिफाई करना कितना मेल है कितना फीमेल है. तो वो Okay. हम आइडेंटिफाई करते थे और उसका भी थीसिस बनाते थे. सो एक्चुअली ऑल दोज थिंग इज न्यू मीडिया. एक्चुअली न्यू मीडिया के बारे में थोड़ा बोलना है मुझे. बिल्कुल. Please. सब लोग न्यू मीडिया बोले तो जब काफ़ी एग्जीबिशन में जाते हैं तो लोग बोलते आर्टिस्ट बोलते हैं आई एम न्यू मीडिया आर्टिस्ट. Right. बट उनको मैं पूछता हूँ न्यू मीडिया क्या होता है. Mhm. वो बोलते हैं कि नए तरीके से काम करो मीन्स न्यू मीडिया. इट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग. न्यू मीडिया एंड न्यू मीडियम इज टोटली डिफरेंट. Please. तो- Okay. Please tell us. ये चीज़ का सब लोग गलती करते हैं. सब लोग सोचते कि हम एक नए मीडियम में काम करें. कोई हाँ. फोटोग्राफी को पेंटिंग में ट्रांसफ़र करें, डांस को किसी मीडियम में ट्रांसफ़र करें, एक न्यू मीडियम में. दैट इज़ एक्सपेरिमेंटल, नॉट न्यू मीडिया. न्यू मीडिया हैज़ टू बी मीडिया. न्यू में क्या, न्यू इज़ अ टेक्नोलॉजी, Right. अपकमिंग टेक्नोलॉजी. Okay. मीडिया मतलब आप लोग न्यूज़पेपर, टेलीविजन, गेमिंग, फिल्म, एडवर्टाइजिंग, दिस ऑल कम्स टू मीडिया. Okay. तो मतलब न्यू मीडिया का एक बेसिक थिंग है. आप अपने को लेके नहीं काम कर सकते हो. जो मास, जो पॉप, जो Right. कीच, उसको लेके आपको काम करना. कोई रिपोर्ट Right. मानो किसी का रेप हो गया उसको आप काम में ट्रांसफर करो. अब कोई जेल हो गया उसकी जेल में जाके आप कुछ. What about the farmers' protest? We can Yes, use the farmers' yes, protest yes, as a definitely. right. So we can you can say it. Yeah, farmer okay. protest Right. और NRCC जो हुआ था protest. Right. So all those kind of bullying, kind of campaigning work, दूसरे मीडिया में ट्रांसफर होता है तो न्यू मीडिया. So ये चीज़ का लोग गड़बड़ करते हैं. आई थिंक one day before I give the talk for Kurukshetra University, I explain that same thing.
टू द चिल्ड्रेन, Okay. क्योंकि ये गलती सब लोग करते हैं. सब लोग बोलते हैं कि ये न्यू मीडिया हो रहा है और न्यू मीडिया का काम कर रहा है. तो डोंट से न्यू मीडिया इज अ बिग वर्ड एंड देयर इज एंड ऑल द टाइम ऑल द स्टेपिंग हैज टू बी diluted to And it's true evolving technology. and it's keep evolving. हाँ, evolving हो रहा है. इवॉल्विंग हो रहा है, लेकिन आपका चैलेंज टेक्नोलॉजी के थ्रू होना है. आप Okay. कुछ भी कर रहे हो, Okay. जैसे टेक्नोलॉजी आना चाहिए. एक लड़का ने पूछा, फोटोग्राफी किया हमने, Okay. और फोटोग्राफी को तो हमने मॉनिटर में एडिट कर दिया. मैंने बोला नहीं, वो फोटोग्राफी हो गया, Right. बट उसके अंदर एक कुछ नया कुछ तो थ्रू, अगर वही फोटोग्राफी को अब एग्जिबिट किया एक साउंड के साथ, साउंड अपने कॉपी पेस्ट ना करके उस साउंड को प्रोसेस किया, Right. और कोई आधा सॉफ्टवेयर से हमने उसको रन किया, उसको एग्जिबिट किया, देन इट वुड बी न्यू मीडिया. Okay. सो आप सिर्फ अपना उसको करोगे तो नहीं हो सकता. Yeah. न्यू मीडिया पढ़ने के लिए मेरे आई फॉर्चुनेटेड बिकॉज आई गेट द ग्रेट फैकल्टी इन कैलिफोर्निया. क्रिस्टीना पॉल, जिसने न्यू मीडिया आर्ट का पहला बुक लिखा था, शी इज़ माई टीचर. Okay. क्रिस्टीना पॉल इज़ माई टीचर, एंड मैगी मॉर्स, ओस ऑसबर्न, एलिनॉइड, दीज आर द Okay. फैंटास्टिक आर्टिस्ट. Okay. एलिनॉइड वीडियो स्कल्पचर बनाते हैं, वीडियो से ही बहुत सारे काम करते हैं. Okay. ऑसबर्न साउंड से काम करते हैं. Okay. साउंड मीडिया को लेके बहुत सारे काम करते हैं. Okay. इसके अंदर मैं कुछ रिसर्च बताना चाहता हूँ. हम लोग क्या Please. रिसर्च किया था. Please. न्यू मीडिया के बारे में बोला कि मीडिया इज इन्वॉल्व, सो वी गो टू द जेल. Right. जेल में भी कितना सारे कुछ कहानी In होता the है. prison, actual prison. प्रिजन. Okay. एंड वहाँ पे कितना सारे टॉर्चर होता है, हमको हाँ. पता भी नहीं चलता. Okay. मेल रेप बाय मेल एंड फीमेल रेप बाय फीमेल. Right. बहुत सारे कुछ होता है, चीज़ें होता है. ये सारे कुछ कहानी हमने वहाँ पे जाके सुना और देखा, ऑब्जर्व किया. यू कांट यूज द कैमरा बिकॉज यू नो यू कैनॉट टेक एनी पिक्चर्स, Right. बट वी हियर देयर स्टोरी एंड So it's a kind of a documentation you did there. बट ओनली द verbal और साउंड. वी Right. कांट टेक कैमरा. Right. कैमरा कोई इजाज़त नहीं था, तो Right. हमने उसको फिर दूसरे मीडिया में ट्रांसफ़र किया. Mhm. सेम तरीके मेरा इंटरेस्ट था जेंडर के ऊपर. देन Right. आई आल्सो गो टू द NGOs, जो लोग सेक्स चेंज कर रहे हैं, जो लोग एक ट्रांसफॉर्मेशन से जा रहे हैं, Right. उनके जाके हम लोगों ने बात किया. और HIV के ऊपर हमने बहुत सारे काम किया था. वहाँ पे मैंने वॉलंटियर था नीडल डोनेशन. Okay. वहाँ पे लोग ड्रग्स लेते हैं, उसमें नीडल यूज़ होता है. Right. नीडल के थ्रू बहुत सारे ड्रग्स, मतलब बहुत सारे HIV ट्रांसफ़र हो जाता है. True. तो वी गो टू देयर हाउस एंड वी काउंसिल देम एंड आई गिव देम condoms and needles. Right. So ये मेरा एक कार्यक्रम था. तो उसके थ्रू आई हैव टू गेट अ ह्यूज नॉलेज. Okay. जैसे HIV, पहले तो मुझे HIV सुन के ही डर लग रहा था ज़्यादा था कि अरे बाप रे. और तब वो था, पहले शुरू हो रहा था HIV. अभी भी लोगों के मन में था, है, अभी भी है. अभी उसके ऊपर भी मेरे बहुत सारे परफॉर्मेंस किया हूँ लोगों को बताने के लिए. आई गिव अ स्मॉल एग्जांपल. मैंने आई थिंक 2019 आई डिड अ परफॉर्मेंस एट फर्स्ट परफॉर्मेंस अबाउट HIV टू मोर्नी हिल बिएनाले इन पंजाब यूनिवर्सिटी. In Punjab. तो उसके पहले मैंने एक न्यूज़ पढ़ा था, एक कोलकाता में एक फैमिली का एक पूरा परिवार है. उनके पता चला उनका फैमिली का हस्बैंड या वाइफ दोनों ही अफेक्टेड है HIV. Okay. तो उनके फ्लैट से उनको थ्रो आउट कर They दिया. were thrown out. Right. एंड वो पूरा रोड में आ गया. Right. तो वो सुन के मुझे लगा हम लोग क्या एजुकेशन नहीं ले रहा है, कहाँ पे गया हमारा एजुकेशन, हमारा सर्टिफिकेट कहाँ गया. तो हम इतना नॉन ह्यूमन कैसे हो सकते हैं. एक बंदा का छात हम कैसे छीन सकते हैं. 3 दिन तक बच्चा को लेके रास्ते में बैठा है. Right. Then one human rights organization came forward and give the all right to the user their flat. So Right. ये मुझे बहुत ह्यूमिलेट लगा यार, हम लोग इतने नॉलेज क्यों ले रहे हैं. एक कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, this are most progressive city and most They're the metro cities of India. yes, most educated. So कहाँ पे जा रहा है इतना एजुकेशन कि हम लोग एक अपने बंदे को, हमारा वो भाई हो सकता है, बहन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. Right. अगर उसको बीमारी हुआ तो हम, और हर टाइम हम क्यों सोचे कि किसी के साथ किसी का संबंध था तो इसीलिए उसको हुआ. इट्स नॉट दैट लाइक दैट. बिल्कुल. सो मेनी कॉजेज. बिल्कुल. जैसे मैंने देखा है कि जब कर रहा था छोटा बच्चा 7 साल का 10 साल का, उनके कोई ऑपरेशन हुआ था या Blood transfusion से हुआ. मलेरिया हुआ था, बिल्कुल. उनको सेलाइन चला, उसके थ्रू भी हो गया. हम वो बच्चे को देखे, अरे ये
he's a bad guy because he has AIDS, because he have fucked up. But बिल्कुल। it's not true. So ये चीज़ मुझे बहुत ख़राब लगा था, मुझे मन में बहुत हुआ। तो ये सारे मैंने प्रोजेक्ट वहाँ पे किया था, बहुत घूमा। And part of my study, I have to do 1 month job. So I did a In US? US. Okay. I did a job in a film industry. I had to do edit. So वहाँ पे भी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी था। फोटोशॉप का बहुत सारे एडिट करके हमें उसको फिर रन करना पड़ता। Okay. तो I learn a lot, and my good experience when I go to Google building to present my paper. So 80% people stand up and salute me that you are Indian. So मुझे इतना अच्छा लगा कि Seriously? इतने सारे इंडियन हैं Seriously? गूगल बिल्डिंग में। Wow. और वो लोग जैसे ही मेरे नाम अनाउंस किया, सब लोग उठ के खड़ा हो गया। ये चीज़ मुझे इतना अच्छा लगा। मेरे देश So most of the कितना staff, महान। most of the staff Yes, are Indians. yes. Okay. मेरा देश कितना महान मुझे उस दिन मुझे And which year it was? Like it was 2007 2007. नहीं, ये अच्छा लगा। अभी आपने कहा कि देश कितना महान है। नहीं तो आज बोलेंगे 2021 में तो बोलेंगे किसी और की वजह से देश महान हुआ है। देश महान बहुत पहले से ही था। यस। राइट। सो ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि यार इतने लोग काम करते हैं, इतने हमारे लिए इतना रिस्पेक्ट है। Right. क्योंकि व्हेन यू गो टू अब्रॉड, सबसे बड़ा क्राइसिस होता है ब्लैक एंड वाइट। आपका स्किन देख, मैं बहुत कुछ फेस किया हूँ। Okay. मेरा स्किन बहुत ब्लैक था, एंड उन लोगों के मन में ये था कि जो ब्लैक होता है वो स्लेव होता है, नौकर होता है। We have religion and they have got skin Skin tones. was black. Wow. So it was so much humility, and मैं देखने के लिए मिला था, but I got good friend also, and but sometimes I face the problem. So society is always divided, Yes, you know. yes, divided. There are two sections because you're black, and all Mexican is black and very similar to my face, and they consider you are Mexican. But I Okay. say no, I'm not Mexican, I'm Indian. Right. So anyway, that's a funny thing. So ये सब चीज़ मुझे देखना पड़ा, but very enjoys life, and I learn lot of things and lot of sensor work, but I could not do here in sensor work because I don't have the programming like the software and facility. If I got the software facility, I can do more work in India. Okay. Yeah, Sadadru, we have to continue with the talk. So, tell us what challenges you are facing presently. The kind of art practice you are doing right now. You are doing a lot of stuff. कुछ हमें पता है, कुछ हमें नहीं मालूम है. Those things, just take us through your present work and yeah, please. See my work, I can say that my work, I tell you my practice. My work is come from gender and sexuality. Right. So the word is very mysterious, and whole like a public or common people take very wrong way. And I want to say first what is gender and what is sexuality. So sex means which is society like a biological term. Society determine who is a male, who is a female, Right. who is a nor male nor female, like a cleave. Okay. That is a biological term. That is sex. Right. We in a form fill up we write the male and female, we tick and others. Right. So this is the gender. That is the sex and sexuality. Now coming to gender. What is gender? Gender is actually a society created mental aura, mental understanding. That is the gender. Okay. क्योंकि I'm giving the 2-3 example. In I think bridge. Bridge word used in German is very much
masculine, elegant, and the same word in Spanish, it was very much female, because Okay. that word considered as a female in their country, and the same word considered as a male in Germany. Right. So all the time society instruct, कभी कुछ चीज़ होता है कि सोसाइटी में एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो उसका कोई मेल फीमेल ही नहीं मानता, उसको एक ही जगह पे रखा जाता है, उसको ना मेल बताया जाता है, उसको ना फीमेल बताया जाता है. ऐसे काफ़ी सारे एग्जाम्पल है. लिंग्विस्टिक, जैसे हमारे बंगाली में जैसे कोई मेल फीमेल नहीं होता, हिंदी में होता है, फ्रेंच में होता है, बिल्कुल बिल्कुल. सो सब एंड स्पेनिश में होता है. तो सारे लेकिन सबका फॉर्मूला एक ही नहीं होता. हर कंट्री का हिसाब से, सोसाइटी के हिसाब से वो चेंज होता जाता है. ट्रू. तो जेंडर कैसे बदला जाता है, जेंडर का चेंज कैसे होता है, ये मेरा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट रहा. ये इसको लेके ही मैंने काम किया काफ़ी सारे. ओके. तो जब भी ये एक चैलेंजेस है मेरे लिए, जब भी मैं सबको बोलता हूँ, जैसे आई एम टॉकिंग अबाउट इमारती कंट्री में जाके बोला कि मैं जेंडर सेक्सुअलिटी के लिए काम करता हूँ, तो उन्होंने बोला यार तुम्हारा तो गर्दन काट देगा, तुम ये बात मत बोलो, इसको मत बोल के कुछ भी और कुछ बोलो. बट यू कैन नॉट से दैट यू आर डूइंग वर्क विद जेंडर सेक्सुअलिटी. ओके. तो उनको मैंने समझाया जेंडर सेक्सुअलिटी इज जस्ट अ वर्ड एंड द अंडरस्टैंडिंग इज डिफरेंट. ट्रू. आप कैसे समझते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है एक चीज़ों को. आपके अंदर कितना नॉलेज है, एक्चुअली नॉलेज से हम जांच करते हैं. तो Right. आपके पास नॉलेज नहीं होगा तो उसको जाजमेंट किसी नहीं दे पाओगे. राइट. तो दैट इज़ द मेन कहानी. तो इसी चीज़ के लिए मुझे बहुत हैरास होने पड़ा और बहुत सारे चैलेंजेस आए मेरे. जैसे मेरा काम में बहुत सारे मेल फिगर आता, तो काफ़ी गैलरी बोलता इतना खूबसूरत एक फीमेल क्यों नहीं बना दो. मैंने Okay. बोला सब लोगों ने तो फीमेल ही बना दिया. आप मातिस को देखो, देगा को देखो, सब लोग को इतना सारे फीमेल बना. फिर भी आप उसका काम, डेविस का काम अभी भी कितना एक्सपेंसिव है. डेविस का काम भी तो है, तो Right. डेविस भी तो उन्हें बनाना. तो एनीवे ये सारे आर्गूमेंट आते रहता है और ये सारे प्रॉब्लम आते रहता है. एंड और एक एक्सपीरियंस बताना चाहता बिल्कुल. हूँ. आई वॉज इन लिंकन सेंटर, आई गिव अ टॉक नेक्स्ट टू मीराना है. उस टाइम एक औरत आके मुझे पूछी कि आर यू क्वेयर, आर यू गे. तो मैंने उसको एग्जांपल दिया. मैम, हैव यू आस्क्ड साबना आज़मी, नंदिता दास, दे डिड अ फायर मूवी, Right. और मीरा नायर, डू यू लेस्बियन. सो दैट लेडी वाज से व्हाट. मैंने बोला मेरे क्वेश्चन का उत्तर भी व्हाट ही है. तो आर्टिस्ट का कोई जेंडर नहीं होता है, वो आर्टिस्ट होता है. सबसे पहला उसका आइडेंटिटी होता है आर्टिस्ट. फर्स्ट इज़ द ह्यूमन, देन इज़ द आर्टिस्ट. आई थिंक मेरा भी वही धर्म है. मेरा कोई क्लास कास्ट कुछ नहीं है, क्योंकि सारे आर्टिस्ट का ऐसे ही होना चाहिए. Right. उसके अंदर कोई जेंडर नहीं होना चाहिए, थोड़ा जेंडर फ्री. आई फील आई एम वेरी वेल जेंडर फ्री पर्सन. तो ये आर्गूमेंट मुझे याद आता है कभी कभी लोगों का मन में सवाल आता है, ये मेल फिगर बनाता है तो ये गे होगा या क्वेयर होगा या बाइसेक्सुअल होगा. ये सारे सवाल आते जाता है. तो मैं बोलता हूँ कि ये सवाल बहुत भेक है. आप अपने नज़रिए से देख रहे हो गे और लाइक क्वेयर और ऑल. एक्चुअली आर्टिस्ट का एक अलग सा मन होता है, अलग सा दुनिया होता है, उसमें ये सब कुछ के ऊपर होता है. ये सब क्योंकि वो उसके मन में क्या चल रहा है आप भी नहीं जानते और खुद भी आर्टिस्ट नहीं जानता है. उसके अलग अलग पन्ना होता है, पहलू होता है. वो पहलू को ही बार बार ढूंढते हैं, पहलू को ही उसमें दर्शाते हैं. Right. उसके अंदर वो कुछ भी सवाल, जैसे आपको जब भूखा है, जिसको हंगर है, वो तब वो धर्म नहीं आता है. जब सब लोग एक साथ खा रहे हैं तब हम मुस्लिम के साथ नहीं खाएंगे, क्रिश्चियन के, तब सब लोग एक साथ बैठ के खाते हैं. क्योंकि Right. भूख किसी का धर्म नहीं मानता. आर्ट भी कोई धर्म नहीं मानता है, कोई जेंडर इशू नहीं मानता है. वो करता है, प्रोड्यूस करता है, क्योंकि सोशल डिवीजन भी नहीं मानता. ये सोशल डिवीजन भी नहीं मानता. उसके अंदर एक नशा होता है. उसको नशा में वो कुछ भी क्या कर रहे हैं उसको पता नहीं है. बिल्कुल. ये मैंने सबको समझाने की कोशिश करा, लेकिन एक दंदो फाइट रहते रहे. सब लोग क्वेश्चन आता है, Right. अरे मेल फिगर मतलब ये है एक इक्वेशन. बट क्यों इक्वेशन? आप काम देखो, काम का फ्लेवर लो, उसके अंदर जो खूबसूरत है उसको देखो. उसके अंदर इतना क्वेश्चन क्यों है? Right. Are you dependent upon any gallery to promote you, or do you think artists should be dependent upon galleries to promote them? हमें गैलरीज के पास जाना चाहिए, गैलरीज पे डिपेंडेंट होना चाहिए, और do you believe that your practice, the way you are working, you are doing your art, it's like you can take care of yourself?
I think I'm very much free bat. Wherever I got a call, I travel a lot. I travel many country. I think 6 months I stay in India and 6 months I travel, and I move here and there. I don't believe about gallery system, and whenever I got call to gallery, I exhibit my work. Mostly I exhibit through curator. I was working with Georgina Maddox. I think last 1 decade she was my curator. Right. And one main gallery I'm working with Engender. That's my gallery. She Moina Mukherjee. She runs from New York. Now she moved to Delhi. Okay. These are main peoples I'm working, but time to time I exhibit Art Alive, all the big gallery, Positive. Okay. Whenever the exhibition comes, I exhibit my work and showcase my work. But I don't bound myself in a gallery and the gallery formula. Okay. So I'm very free, but I have to call. If I call tomorrow some other country, I fly. So I Right. exhibit many country, showcase my work. बिकॉज मुझे लगता है कि आर्टिस्ट को दिखाना चाहिए, दिखाने के लिए कोई पाबंदी नहीं रखना चाहिए. इनफैक्ट आपको रास्ता भी आपको मौका देगा तो रास्ता में दिखाना चाहिए आपका काम. आपको एक गार्डन मौका दे रहा तो गार्डन में दिखाना चाहिए. तो काम करने के लिए आपको वो नहीं ढूंढना है कि एक ऊंची बिल्डिंग होना चाहिए, उसमें रोशनी होना चाहिए. उसका तलाश नहीं करना चाहिए. लोगों को दिखाना आपका मेन मकसद. You're giving me a space to ask you one more question. यस. See, performance inside a certain space and performance outdoors. Okay? जैसे आपने अभी कहा, कहीं भी परफॉर्म करना और एक confined area में परफॉर्म करना. Suppose you have a space, you have a gallery space or any other space or an auditorium or a school or a college where you have to perform inside a certain area. और एक होता है बाहर परफॉर्म करना. What is the difference? What kind of preparations you have to make for those performances? Please watch the second and concluding part of Satyajit Shobhan's journey. This is not the end. Thanks for watching this video, and we'll be back again with more videos like this. Thank you.